অপারেশন সিন্দুর বেইমান পাকিস্তানের থোতা মুখ ভোঁতা করে দিয়েছে ভারত। দুদেশের সম্পর্ক তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে, কিন্তু সেই আবহে ভারতীয় ভাইয়ের প্রতি পাকিস্তানি বোনের ভালোবাসা তো কমতে পারে না। নরেন্দ্র মোদীর মুসলিম বোন, তিনি থাকতেন করাচিতে। প্রতি বছর ভাইকে রাখি পরান, এই ধরুন 30-40 বছর ধরে। আবার রাখিতে গিফটও আসে। অপারেশন সিন্দুর, ভারত পাক সম্পর্কের অবনতি কোনোটাই এই ভালোবাসায় বাধা হতে পারেনি। গত 30 বছর ধরে নরেন্দ্র মোদীকে রাখি পরানোর এই পরম্পরা জারি রেখেছেন তার পাকিস্তানি বোন কামার মাহসিন শেখ। দাদার জন্য নিজের হাতে রাখিও বানিয়েছেন তিনি নিঃসন্দেহে পাকিস্তানের করাচিতে জন্মেছেন, কিন্তু ভারতের প্রতি তাঁর একটা আলাদাই টান রয়েছে, যা কোনো ধর্ম রাজনীতি কিছুই মানে না। আপনাদের আগে মোদীর সেই পাকিস্তানি মুসলিম বোনকে দেখাই, দেখুন তার ছবি। এবছর কামার নিজের হাতে 4টি রাখি তৈরি করেছেন। প্রতিটিতে রয়েছে তার বিশ্বাস আর ভক্তির ছাপ। একটিতে ওং চিহ্ন, অন্যটিতে গণেশের অবয়ব। এইগুলির মধ্য থেকেই সবচেয়ে প্রিয় রাখিটি তিনি বাঁধবেন প্রধানমন্ত্রীর হাতে। আপনাদের দেখাবো এবছরের জন্য কেমন রাখি বানিয়েছেন নরেন্দ্র মোদীর পাকিস্তানি মুসলিম বোন কামার মাহসিন শেখ। দেখুন। উনিশশো 81 সালে বিয়ের পর পাকিস্তানের করাচি থেকে ভারতে চলে আসেন কামার মাহসিন শেখ। সেই সময়ই তার সঙ্গে আলাপ হয় নরেন্দ্র মোদীর। তখন তিনি ছিলেন আরএসএস এর এক সাধারণ স্বয়ংসেবক। সেই সময় মোদী একদিন হঠাৎ জানতে চান, কেমন আছো বোন? আর তখন থেকেই এই সম্পর্কের শুরুয়াত। এর আগে 2023 সালে তিনি মোদীকে যে রাখি পরিয়েছিলেন, সেই ছবিটিও আজ তাক বাংলার হাতে রয়েছে। আপনাদের 2023 সালের সেই রাখি বন্ধনের ছবিটি দেখাবো, যেখানে কামার মাহসিন শেখ তিনি রাখি বাঁধছেন তার ভাই নরেন্দ্র মোদীকে। দেখুন। 2022 সালে আপনাদের একটু নিয়ে যাই, দেখাই আগে তখন কিভাবে রাখি বানিয়েছিলেন মাহসিন, এবং 2022 সালে যে রাখিটি তৈরি করেছিলেন সেই রাখিটা কেমন ছিল দেখে নিন নিজেরাই। মাহসিন শেখের বক্তব্য এবার আপনাদের শোনাই। মোদীর এই মুসলিম বোন তিনি কি বলেছেন আজ তাককে, শুনুন। अपने हाथ से राखी बनाई, सिलेक्ट नहीं की है, और आप देख सकते हैं उसके ऊपर मैंने अपने हाथ से सब मोती वगैरह और वो लगाया है। बीच में उसमें मैंने एक ऐसा नग लगाया कि उनको नजर से दूर, मतलब बुरी नजर से दूर रहें, और बस ये पूरी मैंने खुद बनाई। ভাইয়ের জন্য নিজে হাতে রাখি বানান, অনেকগুলো করে রাখি বানান, 4-4টে রাখি তো এবছর বানিয়েছেন। এই রাখিগুলোর মধ্যে যে রাখিটা সবথেকে বেশি পছন্দ হবে তার ভাই মোদিজির, সেই রাখিটি তিনি তার ভাইকে পরাবেন। এবছর তার অপেক্ষা যে কখন তিনি মোদির দপ্তর থেকে ডাক পাবেন, মানে পিএমও থেকে ডাক পাবেন আর তাকে রাখি পরাতে যাবেন। কামার জানান, গুজরাটের প্রাক্তন রাজ্যপাল প্রয়াত স্বরূপ সিংয়ের মাধ্যমেই নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ। তিনি যেদিন ভারতে পা রাখেন সেদিন বিমানবন্দরে ছিলেন মোদী।
স্বরূপ সিং তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন কামার তার মেয়ের মতো। তা শুনে মোদি বলেছিলেন তাহলে তো কামার তার বোন। সেই থেকেই মোদিকে রাখি পরানো শুরু করেন কামার। কি বলছেন তিনি শুনুন। मेरी जो तैयारी है वो तो 1 महीने पहले से शुरू हो जाती है। मैं जो राखी है अपने हाथ से बनाती हूँ उनके लिए। उनको हाथ की बनाई हुई चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं, या कोई अपने हाथ से लिखे कुछ वो उनको ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उनके अंदर भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कलाकार है जो ये सब चलाता है। तो मैं ये अपने हाथ से बनाती हूँ। उनमें 4-5 बनाती हूँ, उनमें से जो मुझे सबसे अच्छी लगती है वो मैं उनके लिए रखती हूँ, और जब मैं जाती हूँ तो वो उनके हाथ पर बांधती हूँ मैं, और उनके लिए बहुत दुआएं करती हूँ। मैं जो राखी मैं बनाती हूँ उसके एक एक स्टिच में मैं उनके लिए दुआ होती है, मेरे दिल से दुआ होती है। अभी तक मैंने उनके लिए जो कुछ भी कहा है, जिस तरह उन्होंने अपना प्यार मुझे बताया है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ समझिए कि उनकी वजह से ही हूँ, क्योंकि हमेशा उन्होंने जब से मिले हैं तब से हमेशा बहुत प्यार से बात करते थे। कैसी है बहन, क्या चल रहा है आजकल। मेरे हस्बैंड पेंटर हैं तो उनके बारे में पूछते थे कि वो क्या बना रहे हैं। मेरे बेटे के बारे में पूछते थे जो इंटरनेशनल स्विमर है, और हम लोगों को बहुत इनकरेज करते थे। ज़्यादातर जो पेंटिंग्स हैं, जैसे पोखरण की मेरे हस्बैंड ने बनाई थी, तो उन्होंने ही बताया था कि ऐसी कोई पेंटिंग बनाओ। उस वक्त अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे तो उनको हमने जाकर ये पेंटिंग दिया था। तो जब भी मिलते थे इतने प्यार से मिलते थे कि मुझे मेरे दिल इतना हो जाता था। पहली बार जब उन्होंने मुझे पूछा था कैसी है बहन, उस दिन से लेके आज तक मैं उनकी ज़बरदस्त फ़ैन भी हूँ, और उनको तब से मैं रेगुलर राखी बांधती हूँ। ये तो याद ही नहीं है कि कितनी राखी हो गई, लेकिन बहुत ज़्यादा हो गई। तकरीबन 38-39 साल हो गए हैं तब से हमारी उनसे पहचान है। और जब इस बार जो राखी आपने बनाई है इसकी विशेषता क्या है? कितने वक्त से आपने ये राखी बनाने की शुरुआत की है, और जाने का प्रोग्राम या कार्यक्रम किस तरह से रहेगा? ये राखी मैंने अपने हाथ से जो बनाई है, 3-4 जो बनाती हूँ उनमें से ये मुझे ज़्यादा पसंद है। तो बस यही राखी इंशाल्लाह अगर उन्होंने बुलाया, 1-2 दिन पहले ही हमको पता चलता है कि हमें जाना है, वहाँ से कॉल आता है। अगर कॉल आ गया तो मेरी खुशनसीबी होगी कि मैं उनको अपने हाथ से जाके बांधूंगी, और अगर नहीं आ पाया तो फिर मैं उनको पोस्ट कर दूंगी ये राखी। अच्छा, 2023 में आप खुद गए थे और राखी प्रधानमंत्री की कलाई पे आपने बांधी हुई थी, लेकिन कब से आप ये राखी बांध रहे हैं? क्योंकि 1981 के बाद से आप लगातार भारत में रह रही हैं। आपका जन्म कराची पाकिस्तान में हुआ। इसके बाद से किस तरह से प्रधानमंत्री के साथ आप संपर्क में आए? क्योंकि 81 से आप लगातार यहाँ पे पिछले हम कहे तो करीब 45-46 सालों से आप भारत में रह रहे हैं, लेकिन किस प्रकार से प्रधानमंत्री के साथ आपका संपर्क हुआ और ये रिश्ता जो है वो भाई बहन में बदल गया? जी, आपको मैंने बताया कि मेरे हस्बैंड आर्टिस्ट हैं, चित्रकार हैं, तो हम पेंटिंग के एग्जीबिशन के सिलसिले में दिल्ली जाना आना और सब जगह होता था। तो वहाँ पर जब हमारा एक एग्जीबिशन था तब हमारी मुलाकात मोदी जी से हुई थी। उस वक्त वो कार्यकर्ता थे, संघ में थे। तभी से उन्होंने पहली बार मुझे पूछा था कैसी है बहन, तो तब से उन्होंने जो प्यार से बात की थी, तो तभी से मेरा कोई वैसे सगा भाई नहीं है, बहन नहीं है, कोई नहीं है, मेरे फादर नहीं है। तो फिर तब से मेरे दिल में आया कि मैं इनको राखी बांधूं। और राखी का जो है मुझे बहुत पसंद था। जब मैं आई थी, कराची से आई थी और यहाँ पहली बार मैंने राखी देखी थी, तो मैं सबसे पूछती थी कि ये क्या है, क्या होता है। इतने अच्छे रंग बिरंगे सब दिखते थे, और हर जगह राखी ही राखी दिखती थी। तो मुझे पता लगा कि भाई को बांधते हैं, तो तब से मैं ये राखी जो है उनको बांधने लगी। और मेरे हस्बैंड का पेंटिंग का जब भी एग्जीबिशन होता था, दिल्ली में होता था, तो दिल्ली हम जब भी जाते थे तो हम उनको पेंटिंग दिखाते थे। वो बहुत पसंद करते थे मोहसिन की पेंटिंग्स। तो जब पोखरण का बनाया था तो अटल जी के पास मोदी जी ही लेकर गए थे। ये हमारी ज़िंदगी का सबसे यादगार मैं समझती हूँ। লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি, বেল আইকন প্রেস করুন নোটিফিকেশন পেতে।